Hi Kamya, welcome home. महाराष्ट्रियन डिशेस का मैं बताती हूँ, मैं जो भी बनाती थी इनको कुछ नहीं पसंद आता। भाई मैं आया था दिल्ली से, बटर चिकन, ये कबाब मसाले वाला और ऊपर घी तैर रहा है। अब ये कह रही है वरण भात खाओ। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ अर्थ आई ईट दैट। एनीथिंग विच डज नॉट हैव अ फेस एंड मदर, वो मैं नहीं खाता हूँ। एनीथिंग विच इज एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन, वो नहीं खाता। आप खाते हैं फेस एंड मदर वाले या नहीं? मैं तो खाती हूँ। कौन सा पोहा ज्यादा पसंद है, पोहा जलेबी या कांदा पोहा? ऑब्वियस भोपाल का ही सबसे अच्छा है। इंदौर भोपाल का ही बेस्ट है। आप यहाँ भी कंट्रोवर्सी कर ही लेंगे। तो आपका चलेगा ही कंट्रोवर्सी से। आज मेन्यू में है विवेक सर वर्सेस पल्लवी मैम। आप बताएंगे क्या लव स्टोरी है, किस तरह से आप दोनों की मुलाकात हुई थी? I was one of the most legible bachelors in Delhi. Oh my God. Who's most likely to say sorry? We generally don't say sorry, we just Move on. move on, yeah. I would like to reserve my judgment on this. Honestly, his films does get him in a bit of a trouble. I was very frustrated with the typical Bollywood style star-based system. मैं बनाता हूँ सोसाइटी के ऊपर। अगर कर्नाटका में कन्नड़ ना बोलने पे लोगों को पीटना बंद कर दें, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे पीटना बंद कर दें। बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का? पोलराइज करना बंद कर दें तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी दिखाने की। और अगर कोई ऐसी चीज है इंडिया के बारे में जो आप बदलना चाहेंगे? अब मुंह ना खुलवाओ यार मेरा। Wow, what a gorgeous balcony and the view this is. मुंबई में ऐसी बालकनी होना मतलब सपना पूरा होने जैसा है। ये घर है विवेक अग्निहोत्री और पल्लवी जोशी का। एक है एमपी से और दूसरी है महाराष्ट्र से, और इन दोनों का साथ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे इस डायनामिक ड्यूओ से अबाउट द ट्रिलॉजी फाइल्स और खोलेंगे उनकी जिंदगी के कुछ फाइल्स एज आई एंजॉय अ डिलिशियस संडे ब्रंच विद देम। Hi Kamya, welcome home. Hello, here you are. How are you? Very good. How are you? Hi Pallavi ma'am. So nice to see you. Nice to meet you. You guys have a beautiful home. Beautiful paintings. They are amazing. This is Tanjore. I got it from Tamil Nadu, you know. So these are very special ones. There are very few artists who do this kind of now original painting. Amazing. So your house clearly exudes a lot of creative vibe, much like the two of you. Can I tell you a secret? Yes, please. This is the first time Pallavi has allowed anybody to come in our house and shoot. I'm the lucky one. Because she likes you. Thank you. Thank you so much, Pallavi ma'am. And we know that you wanted to be an architect, if not an actor, My right? God, yeah. I can see a lot of artistic vibe all around. Wow. What a beautiful view. कितना वक्त हो गया आप लोगों को यहाँ पर रहकर? हमें अभी 2 साल हो जाएंगे। अच्छा। Before this we were just very close to this place. South Bangla में we had a house there. Born and raised in Mumbai. Yeah. So I love the sea. I can't live without the sea. Before I got married, I used to live in Mahim, Okay. very close to Shivaji Park. So Right. वहाँ से sea view था. हाँ जी. Then the first apartment that we bought had a sea view. I said, apartment कैसा भी हो पर view होना चाहिए sea का. हाँ जी. So after that we've shifted here and this is probably one of the best sea views that तो मेरा यही था कि अगर बॉम्बे में रहना है तो समुद्र दिखना चाहिए। अच्छा। फर्स्ट आई वांटेड टू लिव इन वर्ली, Okay. पर फिर अफोर्ड नहीं कर सकता था। Then finally we shifted वहीं एक सामने। But you were in Bandra for a very long Yeah, time. in Bandra, but there was no sea view there. It was Right, Pali yeah. Hill. फिर हमने जब ये मिला तो I just fell in love because I don't like AC much. I अच्छा। like to keep windows open. It's so breezy, so breezy. You don't need fans, nothing. We never put on fans. Okay. आप आइए तो AC चल रहे हैं आज, अच्छा। वरना वो भी नहीं चलाते हैं। It's very breezy. But you're right, हवा कितनी अच्छी आ रही आपको है लग रहा यहाँ होगा पर। हाँ कितनी जी। अच्छी हवा आ रही है। Yeah. बिल्कुल। Is there a favorite corner जहाँ आप सबसे ज्यादा वक्त spend करते हैं? I spend a lot of time over there in that Okay. place. और ये जो है ये we spend a lot of time
with friends and family doing brunches, lunches. This हाँ is our intimate party place. और ये जो सोफा है जिसपे हाँ भी जी। प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, ये दिस इज नॉट एन आउटडोर सोफा। ओके तो ये हमारे पुराने घर में दिस वाज विवेक सोफा। वो अच्छा यहाँ पे बैठते थे, अपना सारा सब बुक्स वुक्स फैला के, अच्छा पूरा कोई और नहीं बैठ तो सकता था यहीं वहाँ। पर सारी स्क्रिप्ट्स इसी सोफे पे सारी हाँ, स्क्रिप्ट्स हाँ, लिखी हाँ, गई हैं तो Yeah. वही सोफा इनको बाहर ही चाहिए था, एंड आई सेड इट्स नॉट एन आउटडोर सोफा। तो मॉनसून में इसको कवर करके रखना पड़ता है, बट देन दिस डजंट मूव फ्रॉम हियर। Yeah, even Wow. when we shifted here, Yeah. including this new film, The Bengal Files, Yeah. मैं इसी सोफे पे बैठ के लिखी है मैंने। आज तो मैं यहाँ पर कम से कम आधे घंटा स्पेंड करने वाली हूँ, शायद सही है। मेरी क्रिएटिविटी भी और ज्यादा बढ़ जाए इससे। होगी, डेफिनेटली होगी। डेफिनेटली आई। तो इंटीरियर्स में सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व हुआ था? मी, या because I love doing this. We took a bare shell flat और एक साल तक फिर पूरा इंटीरियर चला इसका। मेरे अंदर एक कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड आर्किटेक्ट छुपा हुआ है, तो हम लोग करते रहते हैं। Pallavi's from best friends are also architects. Yeah. रियली Yeah, अच्छा yeah, yeah. Every single thing Pallavi has done it. मैं सिर्फ 3 बार आया हूँ यहाँ पे, 1 साल 1.5 साल लगा इसे बनने में, हाँ जी बट आई केम ओनली 2-3 टाइम्स। वो भी मैं बाहर ही खड़ा रहा, मुझे कुछ पता भी नहीं था। शी बिल्ट एवरी सिंगल थिंग इन दिस हाउस। वाओ हाँ, जब बन गया तो मेरे को आर्ट कलेक्ट करने का शौक है, तो अच्छा। लॉट ऑफ स्कल्पटिंग एंड ये राजा रवि वर्मा के ओरिजिनल ऑलिग्राफ्स आई फाउंड समवेयर, दैट्स ऑल। और लाइब्रेरी मेरी, बस दैट्स माय कंट्रीब्यूशन। और सबसे बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन है कि मैंने पल्लवी को कुछ बोला ही नहीं कि क्या करना है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वैसे, मैं Of course. आपको बताऊं, क्योंकि जब घर बनते हैं ना, हस्बैंड और वाइफ के इतने कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस होते हैं कई बार। नहीं, वो भी हुए। अच्छा, वो हाँ, भी हुए, हमने झगड़े okay. भी किए काफी, लेकिन या बट बाय एंड फार ही वाज क्वाइट बिजी, तो अच्छा मुझे वो समय और वो स्कोप मिल गया। एंड देन विवेक वुड कम एंड से, अरे ये, मैंने कहा ये तो बन गया, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। कोई ऐसी चीज है जिस पर आप दोनों बॉन्ड करते हैं और कोई ऐसी चीज जिस पर आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती? मिनिमलिज्म पे हम दोनों बॉन्ड करते हैं। विवेक ऑर्डर इन केओस को बहुत मानते हैं, और अच्छा। मुझे जहाँ केओस दिखता है मेरा दिमाग बंद हो जाता है। बट ओह। इनका जो स्टडी अगर आप देखें, हाँ। तो वो इतना फैला हुआ होता है, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट इज वेयर। और मैं वहां जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, सो आई वर्क इन अ डिफरेंट स्पेस, आई नीड अ डिफरेंट रूम टू वर्क इन, सो दैट इज द ओनली एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट। कोई ऐसी चीज है जो आप दोनों की शादी से भी पुरानी चीज इस घर में तो हो? बहुत सारी होंगी ये तो जैसे वो टेबल देखिए नीचे पड़ी हुई है, मुझे एकदम से दिख गई वो छोटी सी टेबल। हाँ, वो बहुत ही टूटी फूटी शादी बेचारी के भी है। पहले की है वो। टेबल है, लेकिन मुझसे वो ये फेंकी मैं नहीं जा दिल्ली रही। से लेके आया था अपने साथ, और वो अच्छा। हम फेंकते हैं बाहर, पता नहीं फिर वापस आ जाती है। क्यों आ जाती है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आज भी मुझे ऐसा लगता है, आफ्टर चेंजिंग लाइक अ कपल ऑफ होम्स, Yeah. जो सुकून उस घर में था ना, बिकॉज वी हैड जस्ट गॉटन मैरिड एंड सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लाइफ टुगेदर, तो उस घर की जो मेमोरीज हैं, तो वो कहीं पे मेरे ख्याल से इनमें झलकती है। तो कहाँ था वो पहला घर आप दोनों? ये सेवन इस्लाम- बंगलोज, अमरनाथ टावर है, अमरनाथ टावर नो है। बिफोर अमरनाथ, आई वाज टॉकिंग पंचतंत्र। पंचतंत्र 2 बेडरूम जैसे होते हैं जनरली अच्छा। अपार्टमेंट्स न्यू, जब आप शुरू करते हैं करियर। पर अब एक बार बताता हूँ, हमारे बच्चे जो हैं, यानी बच्चों से मेरा एक ही चीज पे बस बहस होती है, दे डोंट वांट टू गिव अप एनीथिंग जो पुरानी है। वो जो पैदा हुए थे उनका बस चले तो वही ब्लैंकेट, वही क्विल्ट में वो लोग रहेंगे। मेरा बेटा अभी सुबह घूम रहा था, 23-24 साल का है, हाँ जी। वो शॉर्ट्स पहन रहा था जो जब वो 8th और 9th में पढ़ता था, वो पहन के इतने छोटे हो गए, फट गए। मैंने कहा मुझे शर्म आती है यार, चेंज करो। क्या था, नहीं यू डोंट इंटरफेयर। तो मेरी बेटी और बेटा दोनों जो हाँ हैं, जी। दे लाइक टू स्टिक टू देयर चाइल्डहुड मेमोरीज अ लॉट। Yeah, but it's also a little difficult to give away things जिसके आप बहुत करीब है। आपके लिए आसान है? तो मेरे को तो घर में सब लोग ये डांटते ही रहते हैं, तुम्हारी शर्ट टी शर्ट में इतने छेद हो गए हैं, फेंक दो। मैं फेंकता नहीं, मैं जिम चला जाता हूँ उसे पहन के। अच्छा, यहाँ ये लोग गाली देते हैं, लेकिन जब मैं जिम में जाता हूँ हाँ जी। तो वो जो ट्रेनर्स होते हैं कहते हैं सर ये टी शर्ट्स आप कहाँ से खरीदते हैं, हमको भी ऐसी पहननी है। मैंने कहा कुछ नहीं, 2-4 छेद तुम कर लो ऐसी। दे थिंक इट्स लाइक सम डिजाइनर टी शर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, वेरी चीप टी शर्ट। आप बताएंगे क्या लव स्टोरी है, किस तरह से आप दोनों की मुलाकात हुई थी? मैं तो तब आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट लेजिबल बैचलर्स इन दिल्ली। Oh my God! मुझे तो मेरा नाम छुपा था कि दिल्ली में, तो मैं तो ढूंढ रहा था कोई अच्छी सी लड़की। मेरी जो प्रोडक्शन में थी लड़की, नीना उसका नाम था, तो उसने कहा कि चलो पैकअप के बाद चलते हैं कॉन्सर्ट में। उस दिन कॉन्सर्ट में बहुत सारे ये इंडी बैंड्स होते थे ना पहले, हाँ बहुत जी। सारे पलाश वगैरह हाँ ऐसे जी, कई हाँ सारे। तो वो था 10-15 लोगों का था, ब्रेबर्न स्टेडियम में। तो उसके साथ मैं गया, तो उसने बोला मेरी कोई दोस्त भी आ रही हैं, आ रहे हैं कुछ ऐसा। और वहाँ जब हम पहुंचे तो वो क्यू में
ये मेरे बगल में खड़ी हुई थी सामने, ये उसकी भी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा। तो कहने लगी ये पल्लवी जोशी है। तो उसके पहले क्या हुआ था कि कई बार, अच्छा मैं एडवर्टाइजिंग में था, तो इन दोज डेज एडवर्टाइजिंग वाज बेसिकली people in advertising had chip on their shoulders कि we are in the best profession. I'm so glad you finally agreed to this. डोंट वरी मैम, आज हम काफी कुछ एग्री करवा रहे हैं उनसे। तो अभी जैसा तो था नहीं, there was only films, television and advertising जो कैमरे के साथ काम करते थे। तो हम कहते थे फिल्म वालों को तो टेक्नोलॉजी पता नहीं है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग फिल्म्स यूज्ड टू बी वेरी हाई टेक, और टेलीविजन तो पैथेटिक ही था। तो हम लोग बहुत चिप ऑन शोल्डर रहती थी। जो नीना थी, हम लोग पैकअप के बाद जब जाते थे टाउन में शूट करते थे फेमस में, तो वहाँ से निकलते थे तो रास्ते में पल्लवी के घर जाती थी माहिम में, तो टैक्सी लेते थे हम। आई यूज्ड टू लिव इन पाली हिल। तो वो कई बार रुकती, कहती आ जाओ पल्लवी के यहाँ पार्टी है, अपन ऊपर चलते हैं। अरे कौन टीवी शीवी वालों के जाएगा, फिल्मी लोगों के मैं नहीं जाता। एक बार तो न्यू ईयर पार्टी में मैं ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच के उतर के फिर वापस चला गया। तो इट हैपेंड मैनी टाइम्स, नॉट जस्ट वंस, 5, 6, 7 टाइम्स। और उस दिन ये मिल गई। जैसे ही मुझे मिली एंड हमने थोड़ी सी भी बात करी, आई हैड ग्रेट वेरी नॉर्थ इंडियन सेंस ऑफ ह्यूमर। पहली बार मुझे बॉम्बे में कोई लड़की मिली जो सेंस ऑफ ह्यूमर पे रिएक्ट कर पाए। तो अभी भी नहीं कर पाते हैं लोग मेरे वन लाइनर्स। शी डिड, एंड देन शी नॉट जस्ट रिएक्टेड, शी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट। तो वी गॉट इनटू टॉकिंग विद ईच अदर। और मैंने कहा ओ माई गॉड हाउ स्टूपिड आई वॉज, मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटीज मिली इससे मिलने की और मैं गया क्यों नहीं ऊपर। एंड दैट वाज द मोमेंट, आई थिंक बाय द टाइम कॉन्सर्ट एंडेड एंड वी वर गोइंग हेडेड बैक होम, आई थिंक उसके बाद से it was like we never even discussed whether we are in relationship, nothing. And since then we are here. कितने साल हो गए इस बात को? कितने साल हो गए? 91, 92 की बात है। 91, 92 की शादी को कितने साल हुए? शादी को 28 साल हो गए। सर ये रिस्की होता है, कितने साल आपको याद नहीं? हाँ क्या करना है, एनिवर्सरी डेट याद है? हाँ वो याद रहती है, लेकिन कई बार हम लोग जैसे इस बार हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए। हमारी 28 जून को ही थी। Oh, अच्छा। अभी हाँ, belated happy wedding anniversary। Nina used to tell me also कि आज कहीं पार्टी है and Vivek is going to be there। तो मैं भी कई बार मैंने सोचा मैं जाऊं और फिर मैं नहीं गई। एक बार मैं तैयार हो गई थी। अच्छा। And I'm also known to pull these kind of stunts। मैं अभी भी करती हूँ। I get ready to go somewhere and then I suddenly say I'm not going। Really? Okay। हाँ, most of the time, 8 times out of 10। एक बार तो फिल्म फेयर अवार्ड में हम लोग जा रहे थे, गाड़ी में बैठ के निकले थे और 2 मिनट बाद कहती है नहीं जाना, वापस आना। क्यों ऐसे? Social anxiety? No, not anxiety, because you know it suddenly this whole thing कि वहाँ क्या होने वाला है flashes in front of my eyes and I say it's going to be so boring, you know. So it's better to just sit at home and have like a meaningful conversation than just going there and kissing everyone and going how are you, you're looking so nice। बहुत कोफ्त होती है ये सब करते हुए मुझे। सारे इसके दोस्त थे 10-15। अच्छा। और वो सब इसको छोड़ के रॉक कॉन्सर्ट एंजॉय करने चले गए। और इसको चाहिए था पानी पिलाने वाला भी नहीं। Now this is a very Delhi point of view। कोई पानी भी देने वाला नहीं था। मैं जाके भीड़ में इतना स्ट्रगल करके आई ब्रॉट फॉर हर सम कोक या वाटर, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट। सोचिए आई वाज द बेस्ट पर्सन। पर अभी आप अपने आप को दिल्ली वाला मानते हैं? आप हो गए पूरी तरह से मुंबई वाले? थोड़ा तो हूँ दिल्ली वाला, डिपेंड्स करता है। जब मेरे को एक शरीफ अच्छे वेल बिहेव पर्सन की तरह रहना होता है तो मैं 100% मुंबई का हो जाता हूँ। लेकिन अगर मुझे टेढ़ी उंगली से घी निकालना होता है तो 1 सेकंड में दिल्ली वाला भी बन जाता हूँ। दिल्ली वाले ज़्यादा थोड़े मैनिपुलेटिव एग्रेसिव उस टाइप के होते हैं। आई मीन कोई ऐसा नहीं कि मैं तो आई लव होम। अब मैं दिल्ली में रह नहीं सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इम्पॉसिबल। आई कांट लिव इन दिल्ली एनीमोर। बट यू आर ओरिजिनली फ्रॉम एमपी? माय रूट्स आर इन यूपी, बट मैं बड़ा हुआ हूँ भोपाल में। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, पैदा भी ग्वालियर में हुआ था, तो एमपी में रहा हूँ। तो मैं भोपाल जब गई थी रिसेंटली। अच्छा आप गई हैं? अभी हाँ जी। और हमने उन जगहों पर जाके फूड ट्रेल किया, मनोहर डेयरी, हाँ, सागर गए, क्या नाम वहीं बड़ा हुआ हूँ। टॉप एंड टाउन की आइसक्रीम। टॉप एंड टाउन में ही तो लड़कियों को पटाया जाता था। अच्छा। वहीं से लड़कियां आती थी अच्छी, और वहीं लड़के खड़े रहते थे। लेक है, उसके बाद लेक व्यू ड्राइव है, वो भी बड़ी रोमांटिक जगह है। सारा इश्क मोहब्बत वहीं होती है सब लोगों की। वीआईपी रोड है, अरेरा हिल है, वीआईपी रोड है, ऐसी बहुत सारी जगह है वहाँ पे। भोपाल दैट वे इज अ वंडरफुल प्लेस। इट इज ब्यूटीफुल। अब आप कहाँ रुकी थी वहाँ पे? जहनुमा। हाँ, जहनुमा। अब देखिए जहनुमा कितना ब्यूटीफुल होटल है, पुराना वो नवाबों का है। आपको पता है जहनुमा ना पहले अस्तबल होता था, मतलब जहाँ पे वो घोड़ों को रखा जाता था। अब वो बन गया एक हेरिटेज प्रॉपर्टी। अभी भी है वहाँ पर घोड़े, उनकी रोज सुबह को एक्टिविटी होती है, होटल का हिस्सा है वो। खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। It was another very good hotel there। I think it ceased being a hotel now। नूर सबा।
नूर सबा भी एक बड़ा अच्छा बहुत प्यारी जगह थी। अच्छा, आप महाराष्ट्रन क्विजीन, राइट? आपको इन्होंने कोई ऐसी महाराष्ट्रन डिशेस से इंट्रोड्यूस किया जो आपको बहुत पसंद आई? महाराष्ट्रियन डिशेस का मैं बताती हूँ, मैं जो भी बनाती थी इनको कुछ नहीं पसंद आता था। दिल्ली से। अच्छा। तो वहाँ तो आप जानती हैं बटर चिकन, ये कबाब, तंदूरी फंदूरी, यानी वही खाना चलता मसाले वाला, और ऊपर घी तैर रहा है, तेल तैर रहा है, रिच एकदम। अब ये कह रही है वरण भात खाओ। तो मैंने कहा भाई नई नई शादी में, मैंने कहा चलो खाते हैं वरण भात। वरण में नमक तक तो होता नहीं है, वो भी ऊपर से डालना पड़ता है, नींबू भी ऊपर से डालना पड़ता है। फिर क्या कड़ी खाओ, कड़ी मुझे लगता था उसमें ऊपर घी तैर रहा होगा, लाल मिर्ची पड़ी होगी। इनकी कड़ी आप खाओ मराठी लोगों की, तो वो तो यानी हेल्थ फूड जैसे होती है। तीसरा क्या प्रॉब्लम है कि ये जो देते हैं थोड़ा थोड़ा, इतनी सी चटनी, इतना सा कुचम्बर, सब कुछ थोड़ा थोड़ा। नाउ आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है डोंट वेस्ट। पर दिल्ली में तो जब तक कुछ चीजें आप, मैंने अगर चिकन खा रहा है कोई आदमी, 2-3 फेंक ना दे पीसेस, तो मतलब उसमें रईस ही नहीं है वो। अब मैं उस कल्चर से आया था, मुझे तो कल्चर शॉक हो गया, मैं कैसे इसके साथ शादी करेंगे वो। पर धीरे धीरे फिर करते करते शी अडेप्टेड टू दिस थिंग, मोर नॉर्थ इंडियन फूड। पर अब तो मैं नहीं खाता हूँ वो सब खाना, मैंने छोड़ दिया। अब मैं इनकी तरह सिंपल खाना खाता हूँ। आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू ईट। महाराष्ट्रियन जो थाली होती है ना, बहुत इकोनॉमिकल और वेरी हेल्दी एंड वेरी गुड थाली। तो अभी आप ज्यादा महाराष्ट्रन खाना खाते हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्रियन नहीं खाता हूँ। मैं तो अब बिल्कुल प्लांट बेस्ड फूड खाता हूँ। नॉनवेज? नहीं, बिल्कुल नहीं खाता हूँ। पहले तो रोज ही खाते थे, पर अच्छा। अब बिल्कुल नहीं खाता हूँ। कई सालों से नहीं खा रहा हूँ। लोग कहते हैं ना प्रोटीन लो मसल, तो मैं फिश खाता था बीच में। हाँ जी। मटन चिकन छोड़े हुए मुझे काफी टाइम हो गया। अब उसके पीछे काफी रिसर्च और साइंस है। अच्छा। क्योंकि जो द लेटेस्ट मेडिकल साइंस, जो लेटेस्ट साइंस है दुनिया की, वो लाइफस्टाइल मेडिसिन बोलते हैं उसको। वो ये है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसका सोर्स एक ही है, दैट इज फूड। 3-4 रूल्स हैं मेरे। एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ अर्थ, आई ईट दैट। सेकंड थिंग, एनीथिंग विच डज नॉट हैव अ फेस एंड मदर, वो मैं नहीं खाता हूँ। चिकन, फिश, सबकी माँ है। एंड थर्ड थिंग, एनीथिंग विच इज एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन, वो नहीं खाता हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए हेल्दी है, उसका कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। केले का देखा है आपने कभी? रियल दूध का नहीं देखा होगा आपने, पैकेज दूध का देखा होगा। क्योंकि मैं एडवर्टाइजिंग में ही रहा हूँ सारी जिंदगी। आई हैव बीन इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है ना, ये आपको मैनिपुलेट करती है। जैसे हॉर्लिक्स वाकई में बच्चे के लिए बहुत हेल्दी होता है कि नहीं होता है, इस पर डिबेट हो जाएगी मैं कुछ बोलूंगा तो। लेकिन चॉकलेट्स कितनी एडवर्टाइज होती हैं। दिवाली आ गई, चॉकलेट, सारे बच्चे कहते हैं मम्मी चॉकलेट। गिफ्ट में क्या मिलता है दिवाली में? चॉकलेट्स, राइट? वी आर विक्टिम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप फोर्सफुली किसी को मैनिपुलेट करके इमोशनली कहते हैं अब इस चीज को करो। जैसे शराब की किसी को जरूरत नहीं है एक्चुअली, बट यू नीड टू एडवर्टाइज सो दैट सिगरेट्स की किसी को जरूरत नहीं है, बट इट्स अ लॉन्ग, इसके ऊपर तो पॉडकास्ट कर सकते हैं 2-3। इट्स अ लॉन्ग। दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग टू बी एज थॉट प्रोवोकिंग एज योर फिल्म्स। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप खाते हैं फेस एंड मदर वाले या नहीं? मैं तो खाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने जैसे इन्होंने बताया कि ऐसे वो तेल तैर रहा होता था ऊपर, ऐसा खाना खाया है। तो पंजाबी खाना, हाँ, तो इन्होंने बहुत अपना सिस्टम को अब्यूज किया हुआ है। तो इसलिए अब ये नौबत आ गई है ये सब खाने की। मेरा हमेशा सब कुछ मॉडरेशन में रहा है, क्योंकि मैं मतलब फर्स्ट 28-29 years of my life I was eating मराठी फूड। मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स हो गए थे जो ठीक नहीं हो रहे थे। आई रियलाइज कि जो वर्ल्ड की सबसे एडवांस्ड साइंस है, उसमें तो देखिए लोगों की डायबिटीज़, लोगों के मतलब 80% ब्लॉक्ड आर्टरीज लोगों की ठीक हो गई, लिवर्स ठीक हो जाते, इट्स रिवर्सिबल। तो जितनी भी आपकी बीमारियां वो रिवर्स हो सकती हैं। तो आई सेड लेट मी एक्सपेरिमेंट। 30 साल से मुझे एसिडिटी थी, गायब ही हो गई, मतलब जैसे कभी थी नहीं लाइफ में। देन मेंटल फॉग जो होता है वो क्लियर हो जाता है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ मैरिज, वेयर यू लेट ईच अदर बी। या नहीं, पर हम लोग बैठ के साथ में खूब एंजॉय करते हैं। अभी पिछले हफ्ते पल्लवी की पूरी फैमिली आई हुई थी अमेरिका से और जगह जगह से, तो पल्लवी ने बहुत चाट की फीस्ट एकदम, मतलब अच्छा, एंटायर स्ट्रीट फूड ऑफ बॉम्बे। वाओ, अच्छा। रगड़ा पैटर्स, सेव पूरी एंड एवरीथिंग। सुबह से शाम तक एंजॉय करते रहे। ऐसा थोड़ी है मैंने कोई सन्यासी थोड़ी हो गया, मतलब एक्चुअली मैं सही खाना खाता हूँ, बाकी लोग गलत खाते हैं। पर पीपल मेक मी फील गिल्टी। जैसे मैं पार्टी में जाता हूँ तो कई लोग कहते हैं अरे आप शराब नहीं पीते? अच्छा एक ड्रिंक तो पी लो, अच्छा छोटा सा, अच्छा एक बियर, एक वाइन, जैसे वो शराबी नहीं है। तो मैं कहता हूँ देखो ऐसा, फिर वो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, इनके लिए कुछ पानी आनी ले आओ, कुछ अच्छा जूस ले आओ। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मरीज नहीं हूँ, आई एम नॉट सिक। आपने शराब भी छोड़ दी? पहले पीते थे या? पहले पीते थे, मैं बियर बहुत पीता था।
अच्छा, तो छोड़ दी मैंने। एंड हु इज इन चार्ज ऑफ द मेन्यू? घर पर खाना क्या बनेगा? मैं पहले क्या करती थी, हाँ। जब तक बच्चे छोटे थे मैं पूरे महीने का मेन्यू बनाती थी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, एवरीथिंग। अच्छा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है कि कोई मुझे दिन के बीच में आके अगर पूछे कि दीदी खाना क्या बनाना है तो मेरी ऐसे सटकती थी ना, मतलब नो अदर वर्ड फॉर इट, कि मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ लिख रही हूँ, मैं किसी से बात कर रही हूँ फ़ोन पे एंड सडनली यू से कि क्या बनाना है। आई नो। तो फिर देन आई डिसाइडेड टू डिवोट सम टाइम। मैं 3-4-5 घंटे निकाल के एक दिन बैठ गई, मैंने पूरी एक्सेल शीट बनाई। मैंने कहा ये मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये बनेगा, और 30 दिन 30 अलग तरह की Wow. चीजें। सो इट्स नॉट लाइक इट्स गेटिंग रिपीटेड, अरे कल ही पालक खाया था आज वापस खा रहे हैं, ऐसा नहीं। ये आप अपना एक्सेल शीट दे दो, ये हमारे व्यूअर्स को बड़ा काम आएगा। पल्लवी ये कैन गिव हमने- यू 1 मिलियन एक्सेल शीट, हर चीज की एक्सेल शीट बनाती है ये। अगर आपको कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मेरे अंदर एक क्लर्क की हमारे- आत्मा है मैं बहुत स्प्रेडशीट्स बनाती हूँ। हमारी फैमिली में मजाक भी है इसका, सब किसी के रिश्तेदार बहुत मजाक भी करते हैं। अच्छा चलो पल्लवी जाएगी, अब पूरा प्लान करी, बट शी डज दैट, शी इज वेरी मेटिकुलस। लेकिन हमारे घर में मैं आपको बताता हूँ, कई सालों तक आई यूज टू कुक अ लॉट ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड। भोपाली मीट बनाता था मैं। हमारे घर में बहुत सालों तक इट वॉज ओपन डोर पॉलिसी। संडे के दिन सुबह जाते थे, खरीदते थे, फिर 12-1 बजे चालू होता था बनाना, फिर बियरें खुलती थी, वाइन खुलती थी, फिर तमाम कोई डायरेक्टर्स, राइटर्स, एक्टर्स, फिर भीड़ लगती थी दोस्तों की, और वो बनते बनते शाम को 7-1 बजे जाके लोग खाना खाते थे। ये सिलसिला बहुत सालों तक चला। तो जो ये लड़का है राजेश, ये भी भोपाल से ही आया, तो ये धीरे धीरे सीख गया, इसको सब समझ में आ गया, अभी उस चीज़ का एक्सपर्ट बन गया। तो हमारे घर में एक्चुअली 5 मेन्यू हैं। अच्छा, वो लगे, आप किचन में जाएंगी तो आपको मिल जाएंगे फ्रिज में लगे हुए। बेटे का बिल्कुल डिफरेंट है, हाँ। बेटी का बिल्कुल डिफरेंट है, अच्छा। पल्लवी का एकदम डिफरेंट है, और मेरा तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। और Okay. इसके पिताजी रहते हैं, उनका एकदम डिफरेंट है, और कोई मेहमान आ जाए घर में तो उनका डिफरेंट हो जाता है। तो आज कॉमन है ना मेन्यू हम सबका, पता नहीं, हम तो आप तीनों का। बताइए, यू हैव टू टेल। Well, you can sample everything, हम दोनों का तो अलग है। तो चलो लेट्स बिगिन द संडे ब्रंच देन। लेट्स डू दैट। आज जो खाना होगा हाँ जी। उसकी कोई ऐसी एक थीम नहीं है। अच्छा, It's a mix of several different kinds of food. Will you suggest so I can Yeah. sense? ये फिल्म खत्म होने के बाद मैं हर संडे को फिर से ओपन डोर चालू करूंगा। Let's do that. हाँ, Yeah. क्योंकि अब मैं ना लोगों को कन्वर्ट करना चाहता हूँ टू Plant-based मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई दुनिया में है नहीं ना, आई एम वेरी लोनली है दोस्तों। तो इनकी बनाई कौन सी बेस्ट डिश है जो आपको बहुत पसंद? मटन, भोपाली मटन जो विवेक बनाते थे पहले, वही आज बना जो हुआ आप है। खा रही हो मेरी ही रेसिपी है। तो आप अभी नहीं खाएंगे, आज हम दोनों खाएंगे। हाँ, तो वो राजेश has aced that recipe now. और इनकी बनाई कौन सी डिश आपको बहुत पसंद है? Don't say वरण भात। नहीं, पल्लवी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, 2-3 चीजें बड़ी अच्छी बनाती है। एक तो चाट बहुत अच्छी बनाती है पल्लवी, आई लव हर चाट। मैं ऐसे गोलगप्पे खाता नहीं हूँ, लेकिन पल्लवी बनाती है तो मैं रात को डिनर करके बैठ जाता था, और पल्लवी बनाती है, मैं तो ये खा रही हूँ, मैं क्या अनहेल्दी खाना खाती हूँ, फिर जाऊंगा और 10-12 खा जाता था, इतना अच्छा बनाती है। शी इज वेरी गुड विद दैट। वो रगड़ा पैटीज भी बहुत अच्छी बनाती है। तो जब तक खाना आ रहा है, आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू चॉइसेस, दिस और दैट। आपको चूज करना है, मुझे बताना है आपको क्या पसंद है। तो पोहा जो है, एमपी का पोहा अलग है और महाराष्ट्र का कांदा पोहा अलग है। कौन सा पोहा ज्यादा पसंद है, पोहा जलेबी या कांदा पोहा? भोपाल का ही सबसे अच्छा है, इंदौर भोपाल का ही बेस्ट है। आप यहाँ भी कंट्रोवर्सी कर ही लेंगे। आपका चलेगा ही कंट्रोवर्सी से। इनको पता नहीं है, हमारे घर में सब कुछ अभी फ्यूजन हो चुका है। साबूदाना खिचड़ी या दलिया उपमा? साबुदाना खिचड़ी, दलिया उपमा। भुट्टे का खीस या पितल भाकरी? पिठला भाकरी। दूसरा तो मुझे पता भी नहीं क्या होता है वो। आपने खिलाया नहीं है। ये वरण भात के बाद मैंने इनका ग्रेजुएशन ही ऐसे नहीं नहीं, होने ऐसे दिया। नहीं। जलेबी रबड़ी या मोदक? बोलो। Both. एनी Both are डे simple. जलेबी रबड़ी। घर की वरण भात या 5 स्टार गोरमे थाली? घर का वरण भात। चाय विद पार्ले जी या कॉफी विद खारी? Just चाय, साथ में कुक करना या बाहर से ऑर्डर करना? साथ में कुक करना। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट राइटिंग ओवर चाय और एडिटिंग ओवर स्नैक्स? मैं तो सारी स्क्रिप्ट राइटिंग चाय के ही साथ की है। 10-10 कप चाय पी जाता था मैं। और एडिट पर भी आप ही बैठते हैं? या What process do you enjoy more? Script writing या editing? आई राइट माई फिल्म ट्वाइस, वंस वाइल राइटिंग, वंस वाइल एडिटिंग। एक बार स्क्रिप्ट हो जाती है तो मैं कहता हूँ माई फिल्म इज रेडी, लेट्स शूट। और जब एडिट आता है तो आई क्रिएट सम न्यू फिल्म, इट्स अ टोटली न्यू फिल्म।
Rajesh, you want to serve us, please? Yes, ma'am. हाँ जी राजेश, बताइए क्या बना है आज? मैंने आज इडली बनाई है ओट्स की। अच्छा, ये सांभर है, ओके। बिना ऑयल के है ये। ओह, ये मिक्स वेजिटेबल्स सौते की हुई है। अच्छा, ये ब्लैक राइस है। ओके। हाँ, ये भी बिना उसके ऑयल का है। ये सारा विवेक सर का मेन्यू लग रहा है बिना तेल के। जी। आज मेन्यू में है विवेक सर वर्सेस पल्लवी मैम। अब जाओ उनको मटन के बारे में बताओ। Yeah. These are chops, and Rajesh makes them so well. अच्छा, It's like it can melt in your mouth. राजेश किसने सिखाई है इसकी रेसिपी आपको? मैम कुछ तो मैंने ढूंढ के निकाली है, कुछ सीखा है, कुछ घर से, कुछ बाहर से। ऐसा अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं? हो गए मुझे यहाँ 20-22 साल हो गए। सबसे बड़ा फूडी कौन है घर पर? सभी हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक दिन घर में एक खाना बनता है हाँ। जो 10 लोग मिलके खाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर 10 लोग हैं तो 10 अलग तरह का खाना बनता है घर में। वाह। तो राजेश किचन नहीं चलाते, राजेश रेस्टोरेंट चलाते हैं हमारे यहाँ पे। अच्छा, और राजेश की स्टोरी क्या है? मुझे भी नहीं निकली थी इसकी। He came basically मेरी मदर इन लॉ की देखभाल करने के लिए आया था। Then after that he graduated into cooking and then अच्छा। he's been with us ever since. वाह, आपके खाने की तो बहुत तारीफ सुनी है, आज हम सब ट्राई भी करेंगे। थैंक यू सो मच इतना सब हमारे लिए बनाने। ये भी भोपाल का ही है। ओह, तो बिल्कुल ऑथेंटिक। यस मैम। Isn't it difficult for you guys to keep shooting while everyone is eating? तो लेट्स टॉक अबाउट योर वर्क आल्सो, एंड यू डोंट माइंड राइट, हम बातें कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो हाँ जी। हमारे यहाँ तो सब यही शिकायत करते हैं कि बातें बहुत करते हैं सब लोग। बोलने का शौक। Have you ever influenced his decisions of making films? बैठकर डिसाइड किया हो कि ऐसा नहीं वैसा करते हैं कुछ? What is the brainstorming process like between the two of you? We've always had creative discussions. We've had creative differences. But the paths on which you should walk, I think, should be decided by the individual. So I wouldn't even dream of influencing Vivek in any way. Right. Yes, I would give him suggestions when he asked. And if I felt that something is amiss या आगे चल के विवेक को कहीं कुछ तकलीफ हो सकती है इसमें, तो I think as his wife and as somebody who really cares for him, as his family, it was my duty to make him aware of the dangers that might lay ahead of him. And I do only that. I cannot be influencing him to a level where I say कि नहीं ये करो, इससे तुम्हारा फायदा होगा. But honestly, his films does get him in a bit of a trouble. Are you usually very intuitive कि इसका problem हो सकता है? Yeah, he also knows that. I think even before I warn him, he knows what is going to happen. Yeah. Vivek has a very, very deep understanding of, life in general. The reason I have never stopped him from doing anything, from following this path, is because I know that he's not doing this to stir up controversy. Controversy hoti hai because of the kind of subjects they are. Right. Lekin the idea behind making these films is because he is so influenced by our culture. And he wants to contribute to the culture of India. And that's why he's making films where there is a lot of research involved. ऐसा नहीं है कि हमने एक सोच लिया कि कश्मीर पे फिल्म बनाएंगे और एक कोई कंट्रोवर्सी दिमाग में आई और हमने बना दी. We have gone through 4 years of research. मैंने एक फैमिली को जाके बैठ के मैंने इंटरव्यू किया है. I have seen their pain. We've lived through that pain. कश्मीर फाइल्स का सारा पल्लवी नहीं किए सारे इंटरव्यूज. And both of us, every single interview we used to cry. और दिन में 4-4, 5-5 इंटरव्यूज होते थे. रात को नींद नहीं आती थी हमें. इतना वाउंड अप हो जाते हैं उस पेन में, उस हॉरर्स में, कि आप अनवाइंड करें तो करें कैसे. तो इमोशनली इतना ज़्यादा हार्ड कॉइल्ड हो जाते हैं ना आप कि आपको नींद नहीं आती. पर मैं एक बात बताता हूँ आपको. आपने पल्लवी से पूछा है whether she has influenced me or not. She doesn't remember. जब मैं I was very frustrated with the typical Bollywood style star based system and I had no escape. या तो मैं छोड़ के जाऊँ तो जाऊँ कहाँ. तो मैंने पल्लवी से एक बार बात कर रहे थे तो मैंने कहा यार मुझे क्या करना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी कि क्या करना चाहिए, शी सेड सी
As a filmmaker, you have two choices. You can be a very successful director. So, क्या hit film बनाई, क्या hit film बनाई. Or you can be a director with a lot of credibility. So you have to choose what. And at that very moment, I knew what I had to do. थोड़ा dramatic करके बोल रहा हूँ. If I have to die, where do I want to belong? People say, yes, this guy had made credible cinema, और somebody कि लोग कहाँ उनने वो 2-4 हिट फिल्में बनाई थी और बोले अरे हाँ वो तो बकवास थी, या टाइम के साथ वो फिल्में ख़त्म हो जाए. तो क्रेडिबिलिटी तब आती है जब आपकी फिल्म आज भी उतनी रेलिवेंट हो. पाथेर पांचाली जो सत्यजीत रे की आज भी उतनी ही रेलिवेंट है. अंकुर उतनी ही रेलिवेंट है श्याम बेनेगल की. ताशकंद फाइल्स 50 साल बाद भी उतनी रेलिवेंट रहेगी. कश्मीर फाइल्स 100 साल बाद भी उतनी रेलिवेंट रहेगी. और बंगाल फाइल्स तो मुझे लगता है बहुत सारे सालों तक रेलिवेंट रहेगी और लोग अपने बच्चों को दिखाएंगे देखो ये इंडिया की पार्टीशन की हिस्ट्री है. बहुत इन्फ्लुएंस करती है मुझे ये. मैं ये सात्विक इसलिए इसी के कारण बनाऊं बिकॉज मैं उससे कहता हूँ देखो मैं बिकॉज आई हैव टू इम्प्रेस यू ऑल द टाइम सो आई एम वेरी एनर्जेटिक. I would love to try your sattvic food also actually. प्लीज आप ये देखिए. मुझे बताएं राइस के बारे में. It looks different. ये ब्लैक राइस है एंड जस्ट वेजिटेबल्स दैट्स ऑल. Okay. तो कॉम्प्लेक्स कार्ब है और फाइबर्स है. नो ऑयल. और ब्लैक राइस के कुछ अलग फायदे हैं. मैं पहली बार खा रही हूँ ब्लैक राइस बाय द वे. स्लोली एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी. सिंपल लेमैन लैंग्वेज में. हाई फाइबर फूड है ये. एंड वेरी स्लोली इट एब्जॉर्ब्स. तो ये आपके शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है. अच्छा. सारे प्रॉब्लम्स तभी होते हैं जब शुगर लेवल स्पाइक होता है आपका. हाँ जी. तो वहीं से सारी बीमारियां चालू होती हैं. ओके. तो हालांकि मुझे डायबिटीज की कोई शिकायत नहीं है बिल्कुल भी. हाँ जी. नाइस. थोड़ा ब्लैंड है टू बी ऑनेस्ट. या यू हैव टू एक्वायर दिस टेस्ट. या. पहले क्या थोड़े दिन बाद आपको राइस का टेस्ट आने लगेगा, फिर वेजिटेबल्स का टेस्ट आने लगेगा. और जब आप ये स्पून में तरह तरह के कलर की वेजिटेबल लेंगी तो हर एक का अलग अलग टेस्ट आने बिल्कुल. लगेगा. एंड एक्चुअली मैंने पहले सिर्फ राइस लिया, फिर मैंने ये वेजिटेबल्स के साथ लिया तो थोड़ा टेस्ट लगेगा. और आप इसे थोड़ी दाल डाल लें तो थोड़ा टेस्ट होगा, सांभर डाल लें तो और टेस्ट होगा. अच्छा. तो आपकी जो फिल्में होती हैं काफ़ी पोलराइजिंग व्यूज़ होती हैं उन फिल्मों के. एक सेक्शन को बहुत अच्छी लगेगी, दूसरी शायद आपको एक बैकलैश मिलेगा. आप चाहे तो सेफ प्ले कर सकते हैं, एक अच्छी मूवी बना सकते हैं जो सबको पसंद है, हंसी खुशी आए और जाए सिनेमा घर से, यू नो. बट इज इट वेरी वेरी इंटेंशनल कि मैं ऐसी ही मूवीज बनाऊं वेयर इट इवोक्स अ थॉट और अ डिस्कशन कि लोग आकर मूवी देखने के बाद इसके बारे में सोचे? या अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. अगर कोई कहे कि अच्छा जाओ बॉम्बे के ऊपर एक रियलिटी फिल्म बनाओ, तो आपको सड़क के गड्ढे दिखाने ही पड़ेंगे, फुटपाथ में चल नहीं सकते दिखाना ही पड़ेगा, बॉम्बे में पोल्यूशन है दिखाना ही पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके नीचे कैसे लोग रहते हैं आप देखिए तो बॉम्बे में दिखाना ही पड़ेगा. माहिम जहाँ पल्लवी रहती थी उसके आगे एक दरगाह थी. मैं रोज़ रात जब नया नया आया था दिल्ली से रात को निकलता था तो एक डस्टबिन था बहुत बड़ा, मतलब कचरा पेटी नहीं होती जहाँ सारी दुनिया सामान पे. वहाँ पे आदमी का बच्चा और कुत्ते का बच्चा और सुअर का बच्चा तीनों खाने के लिए लड़ाई लड़ते थे आपस में और इतने बड़े बड़े चूहे घूमते थे. तब ये तो बॉम्बे है. अब कोई उस पर बनाए तो कहे अरे यार तुम ये क्यों दिखाते हो, हमें तो सिर्फ वो एंटिला दिखाया करो, ताज होटल दिखाया करो, अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें दिखाया करो, राइट. तो अब मैं बनाता हूँ सोसाइटी के ऊपर फिल्म. इंडिया की जो सोसाइटी है पॉलिटिक्स है. आप पोलराइजेशन तो वहाँ है, मैं थोड़ी दिखाता हूँ. आप पोलराइजेशन बंद कर दीजिए वहाँ पे. अगर पॉलिटिशियंस लोगों को पोलराइज करना बंद कर दें तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिखाने की. अगर कर्नाटका में कन्नड़ ना बोलने पे लोगों को पीटना बंद कर दें, महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पे पीटना बंद कर दें तो सोसाइटी पोलराइज नहीं रहेगी. आप हर समय धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे पोलराइज मत करिए. अब तो टेक्नोलॉजी भी पूरी पोलराइज्ड है, सोशल मीडिया. और जैसे घर में कोई चीज़ में कहीं क्रैक है तो उसके ऊपर मैट डाल देते हैं, कोई अच्छी सी पेंटिंग, दीवार में क्रैक है पेंटिंग लगा देते हैं, सब सुंदर लगता है. पर अगर कोई उस बोले नहीं अपने घर की रियलिटी दिखाओ तो पेंटिंग उतारनी पड़ेगी. तो माई फिल्म्स आर डिवॉइड ऑफ दोज पोस्टर्स विच जनरली गवर्नमेंट्स पेस्ट ऑन द सोसाइटी की नहीं एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल. इट्स नॉट. अभी पहलगाम में तो मारा ना लोगों को, तो अब उस पर कोई फिल्म बनाएगा तो ये तो नहीं कह सकते पोलराइज क्यों कर रहे हो. अब जैसे द बंगाल फाइल्स जो ये फिल्म है, दिस फिल्म इज़ अबाउट आपकी पूरा पार्टीशन जो हुआ वो कम्युनल वायलेंस के कारण हुआ, रिलीजियस रीजन पे हुआ. और इसीलिए हुआ सो दैट नाउ दीज टू पीपल कैन लिव पीसफुली. जैसे घर होता है दो भाइयों में झगड़ा हो जाए तो बंटवारा हो जाता है कि अच्छा भाई अब झगड़ा नहीं करना, तुम अलग अलग हो जाओ. लेकिन अलग अलग होने के बाद भी उनका झगड़ा चलता रहे, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो इंडिया में आप देखिए ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा जब कोई कहीं ना कहीं कोई कम्युनल वायलेंस ना हो रही हो. ऐसा आपको एक घंटा नहीं मिलेगा आज की तारीख में जहाँ कहीं ना कहीं रिलीजन को लेकर लोग लड़ ना रहे हो.
But do you think it's politically driven या सचमुच? It is only politically driven. Only politically. Only political driven. आप देखिए 10 लोग बैठे होंगे, खाना खाओ, मौज करो, I mean, गाना गाओ, जिंदगी की बात करो, everybody is on the same page. कोई भी रिलीजन हो, कोई भी फेथ हो, एक आदमी आके उनको पोलराइज कर सकता है एक छोटी सी बात पे, और देखिए धीरे धीरे लोग डिवाइड होने लगते हैं, ऑफिसेज में भी होने लगते हैं, और सोशल मीडिया तो दिन रात करता है. आर यू ऑन ट्विटर? No. हाँ, तो एक बार आके देखिए. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्विटर. Please no, she's looking so happy. you Better are- be happy. And that's why we are enjoying so much talking to you. But how is it working together? ऑफिस में एक साथ, घर में एक साथ, फिर Sometimes we have too much of each other and we need our space. But overall, I think we've built a good working partnership. We understand each other, and I think being married kind of helps because we both can anticipate each other's behaviors, on sets. Right. So we don't tread on each other's toes. But you both have your own area of expertise. मैं भी अपने husband के साथ काम करती हूँ. The entire idea of trilogy is Vivek Agnihotry's mind. That's his brainchild. Okay. So he writes the script, he directs the film, and putting the whole film together is my job. जब आप ट्रैवल करने निकले थे तब किसी ऑब्जेक्टिव से गए थे या इज दैट योर वे ऑफ अनवाइंडिंग? नहीं, जब आप ऑब्जेक्टिव से निकलते हैं तो वो ट्रैवल नहीं होता, उसे टूरिज्म बोलते हैं. वो मैं करती हूँ. ट्रैवल जब होता है बिना ऑब्जेक्टिव के होता है. हाँ जी. जस्ट ट्रैवल, गोइंग नोवेयर. कोई ऐसी जगह है जो आप दोनों की फेवरेट है? इंडिया. मैं इतना घूमी हूँ और मैं आपको बता रही हूँ सच में, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वैसे दुनिया में कहीं नहीं है. हमें जितनी हॉस्पिटैलिटी है, जितना अपनापन है, और जितना निस्वार्थ भाव से हम किसी को अपनी घर में, अपनी ज़िंदगी में हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इतना एक्सेप्टेंस मुझे दुनिया में और किसी भी सोसाइटी में नहीं मिला है. जो फैमिलीज सड़क पे रहती हैं, भीख मांगती हैं, उनको जब वो when they are not begging, you see their behavior. वो मियाँ बीवी बैठे होते हैं, वो कोई चिमटी काट रहे हैं एक दूसरे को, बीवी हंस रही है, बच्चे आके उसकी गोद में खेल रहे हैं. फैमिली है ना, जब तक फैमिली है तब तक हैप्पीनेस है. और Yeah, ये but वेस्टर्न family वर्ल्ड system में is very strong. कहीं नहीं मिलता. और गोलगप्पे भी यहीं मिलते हैं. वी आर द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ओके, तो बड़े बड़े सिविलाइजेशंस खत्म हो गए दुनिया के. वी आर द ओनली सर्वाइविंग लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन. तो क्या रीज़न है कि वी सर्वाइव्ड? देयर इज़ नो अदर सोसाइटी और कंट्री विच वॉज एनस्लेव्ड फॉर 1000 years. उसके बाद भी जब अंग्रेज छोड़ के गए हमको, तो हम जैसे थे वैसे ही वैसे रहे. ऐसा भी नहीं हुआ कि हम कुछ और बन गए. आप साउथ अफ्रीका जाएंगी तो आपको लगेगा नहीं अफ्रीका में है. ओके, इट बिकेम लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच वर एनस्लेव्ड, वो उनके जैसी बन गई जैसी कंट्रीज ने उनको किया. इंडिया में छोटी छोटी पॉकेट्स हैं बस, जैसे पौंडीचेरी बिकेम मोर फ्रेंच इन बिहेवियर एंड कल्चर, गोवा बिकेम मोर पोर्चुगीज, बट दे वर वेरी स्मॉल एरियाज. लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के गए भारत को, तो बाकी भारत वैसा का वैसा ही था जैसा हमेशा से था. तो ये क्या है जो इतना एब्जॉर्ब करता है? वो स्पिरिट क्या है? वो क्या वैल्यूज़ हैं? वो क्या चीज़ है ओके जो इंडिया को इतना इंटैक्ट रखता है? एंड दैट रियली मेड मी फील सो गुड एंड ग्रेट, एंड आई सेड आई हैव टू डिस्कवर दिस. पर ये हो गया कि वो डिस्कवरी में मैंने इंडिया के जो प्रॉब्लम सालों से चल रहे थे उस पर फिल्में बनाई हैं. बट आफ्टर दिस व्हेन आई मेक अनदर ट्रिलॉजी, देन आई विल मेक ऑन द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया. और अगर कोई ऐसी चीज़ है इंडिया के बारे में जो आप बदलना चाहेंगे, व्हाट वुड दैट बी? मुंह ना खुलवाओ यार मेरा तो. मैं बदलना नहीं, सुधारना चाहिए. सुधारना चाहिए. दैट बदलना तो नहीं इज चाहिए. द सिस्टम. इंडिया कैन बिकम वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री. सिर्फ इतना करना है, एक काम, करप्शन खत्म करना है. करप्शन खत्म करना है. और नहीं तो ये सब रोड्स खराब हैं, पोल्यूशन है, हॉस्पिटल्स खराब हैं, ये करप्शन के कारण है. अभी घर जाओगी ना वापस, जरा ध्यान से देखना, सड़कें बहुत चौड़ी हैं. यूरोप अमेरिका से ज़्यादा चौड़ी सड़कें हैं इंडिया में. पेड़ भी लगे हुए हैं लाइन से सब जगह पे, साइंस भी लगे हुए हैं सब जगह पे, है सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर. लेकिन करप्शन के कारण 70% चीज़ें चलती नहीं हैं. कहीं गड्ढे हो गए हैं, फुटपाथ पे चलो तो कब अंदर चले जाओ पता नहीं है. वो साइन बोर्ड लगा होगा तो टेढ़ा होगा, या उस पर किसी ने पॉलिटिशियन ने अपना पोस्टर लगा दिया होगा. दैट इज़ द प्रॉब्लम. वैसे तो हम चाहेंगे आप और कई सारी ट्रिलॉजीज बनाएं, पर अगर रिटायरमेंट के बारे में सोचते हो, कोई सोचते हो इस जगह पर जाकर हम सेटल होंगे? I think both of us love Goa a lot. या वील नेवर रिटायर. मैं भी कभी, हम लोग कभी रिटायर नहीं होंगे. लेकिन येस, आई हैव अ ड्रीम.
मैं बहुत सालों से पहले हिमालय में रहना चाहता था। अच्छा। तो अगर आप देखिए ट्विटर में मेरा लिखा भी होगा एड्रेस में हिमालय, लेकिन अब मेरी नी टूट गई थी तो इट्स बिकम वेरी, और हिमालय बहुत क्राउडेड हो गया है। हमने बहुत ट्रैवल किया, हमने दुनिया के मोस्ट ऑफ द सिटीज़ एंड एवरीथिंग वी हैव सीन, वी हैव थॉट अबाउट इट, लेकिन अब मुझे कहीं रहना होगा। नाउ द स्टेट ऑफ माइंड आई एम इन, तो मैं साउथ गोवा में जाके रहूँगा यार, क्योंकि वहाँ कोई आता नहीं, नोबडी केयर्स अबाउट साउथ गोवा, तो यू आर नाइस, लोनली, एंड इट हैज़, साउथ गोवा हैज़ वन ऑफ द बेस्ट बीचेस इन द एंटायर वर्ल्ड, longest beach, clean, nice, you can walk without problems, no bheed bhaad. So that is where I would like to live. Yeah. South Goa has converted Vivek because he's always been a mountains person. लेकिन साउथ गोवा के बीचेस देखने के बाद ही सडनली फॉलन इन लव विद द बीचेस। आपको बताना है हु इज मोस्ट लाइकली टू एक दूसरे की तरफ पॉइंट करना है या खुद की तरफ पॉइंट करना है। ओके, हु इज मोस्ट लाइकली टू गेट इनटू अ कंट्रोवर्सी? हु इज मोस्ट लाइकली टू रिप्लाई लेट ऑन कॉल्स और मैसेजेस? To have a higher screen time. अच्छा, I mean mobile वाला screen time. Say the blunt truth on the face of anyone. Both of us. Both of us. Get drunk at a party. Now she, earlier me. Send a message and later regret it. None of us. No, I don't regret. No. मैं भेज देती हूँ बस। हाँ, रिग्रेट नहीं करती, भेज देती है। एक दूसरे के लिए लास्ट आप दोनों ने कोई गिफ्ट खरीदी थी? नहीं। I don't remember. पहली गिफ्ट? हाँ, पहली तो कई सारी थी, वही जो होती है इश्क में। पहली डेट कहाँ पर थी? ब्रबन स्टेडियम। नहीं, पहली डेट अपनी कहाँ थी? अच्छा। डेट as such मेरे ख्याल से बिस्ट्रो में थी। दिल्ली में हौस खास में ऊपर नहीं है वो रेस्टोरेंट्स, वहाँ किसी एक रेस्टोरेंट में थी, बिस्ट्रो उसका नाम। Who is most likely to improvise on the set? Who is most likely to say sorry? Me. We generally don't say sorry, we just Move on. Yeah. I would like to reserve my judgment on this. But she does. Whenever she. No, my thing is that I say sorry when I realize I'm wrong, and then I expect the same out of him also. And I say sorry even when I know I'm not wrong. So I say sorry कि चलो इस बारे में बातचीत तो चलती रहेगी, काहे को झगड़ा करना। अच्छा, what is the longest that you can go on without talking to each other? One week. One week. Okay, who's most likely to join politics? Neither. Nobody. Neither of us. Who's most likely to forget things? To plan holidays? आपको भी करानी हो अपनी हॉलिडे प्लान तो इनसे बात करिए। I'll give you all my spreadsheets. अगर आपको कहीं भी जाना हो पल्लवी से संपर्क करिए। अभी हम लोग कल अमेरिका जा रहे हैं। हाँ जी। आप अभी देख लेना आप इसकी शीट जरा, जो डिटेल में बनाती है पल्लवी, माय गॉड। Who's most likely to spend instinctively? Me. We are very grateful कि आप दोनों ने मुझे इनवाइट किया घर पर, कर्ली टेल्स के व्यूअर्स को इनवाइट किया, because we really enjoyed and now we are looking forward to the release of the film. कब रिलीज हो रही है? 5th of September टीचर्स डे है और हमारी बेटी का भी जन्मदिन है। Oh wow. और हमारी फिल्म भी रिलीज हो रही है 5th सितंबर को। या सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर Okay, हैपनिंग। wishing you both all the very best. Thank you very much. मुझे बहुत मजा आया आपका मेन्यू भी ट्राई करके और आपका भी। किसका मेन्यू खा के आपको ज्यादा मजा आया ये आप बता दीजिए जाने से पहले। देखो मैं बताता हूँ, जितनी अनहेल्दी चीजें होती हैं वो सबसे ज्यादा टेस्टी होती हैं। इन्होंने जवाब दे दिया, अब मैं क्या ही बोलूं। No, but I really enjoyed the black rice. थैंक यू। किसी दिन आप आइए, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा। अच्छा, आपको चलो। पता भी नहीं चलेगा कि वो किस तरह बिना का तेल खाना के है। बना है। बिना तेल के बना है, कि वो खाना भी है। Eat it like medicine.